नमस्कार, स्वागत है आपका सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा हुई। लोकसभा में वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में आज क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। विश्व में बदलते आर्थिक माहौल के बीच विकासशील अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बजट में उठाए गए सशक्त कदम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पर लोकसभा में 3 दिन तक चली चर्चा का दिया जवाब। कहा, बजट में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को विकसित भारत बनाने की चुनौतियों को साधने की कोशिश। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ बजट में अन्नदाता, गरीब, नारी और युवाओं पर फोकस। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी जरूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं की गई कोई कमी। बजट में किसी राज्य के साथ राजनीतिक आधार पर भेदभाव के आरोप को किया खारिज। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने बिना इलस्ट्रेशन के बाजार में बिक रही संविधान की प्रतियों को लेकर सरकार को सख्त कदम उठाने का दिया निर्देश। कहा, संविधान के हर अध्याय में बनी कृति का विशेष महत्व। संसद की मंजूरी बगैर नहीं हो सकता संविधान में कोई भी बदलाव। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को विकसित भारत बनाने की चुनौतियों को साधने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2025-26 पर 3 दिन तक चली चर्चा का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ ही अन्नदाता, गरीब, नारी और युवाओं को फोकस किया गया है। किसी भी जरूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई कमी नहीं की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसी राज्य के साथ राजनीतिक आधार पर कोई भेदभाव करने के आरोप को खारिज किया। This budget has come at a time of immense uncertainties. And the change in the global macroeconomic environment makes it challenging. So, if there are challenges which have actually made the budget preparation with a lot more uncertainties, I have to at least put in front of the August House that there are issues which are of global concern, which also have an impact on our own budget making. There is a continuation of global conflict in the Middle East. Russia-Ukraine war continues. Stagnation in global GDP and sticky inflation in the emerging markets are all vitiating the atmosphere in the entire developing economies. Actually, what is happening is where we have ideally a situation which should encourage free trade, we are seeing more restriction. Where we very strongly vouch for globalization, we see a lot more fragmentation. Where we need fiscal prudence, we are seeing rising debt. Where we are seeing market forces which should actually play to make sure economies are going to be absolutely free and fair in its practices, we are seeing many restrictive industrial policies. As far as the first advanced estimates from NSO have come in, India's economy is expected to grow by 6.4% in real terms and by 9.7% in nominal terms. So during the current financial year, this is the picture which we want to present before you. The inflation trends, particularly food inflation, appears to be moderating. Sir, the union budget for 25-26 has sought to address these immediate challenges facing the domestic economy in the global context. It also rolls out futuristic path for transforming India into Vikasit Bharat with a focus on Garib,
youth, Annadata and Nari, the budget likes to reveal new schemes and reforms in the following broad sectors: promotion of agriculture, MSMEs, investments and exports as growth engines, and building rural prosperity and resilience. We also want to have employment-led development, spurring domestic consumption and boosting manufacturing in India, including export promotion. Continuing public capital expenditure, sir, and rekindling the animal spirits in the private sector to step up investments. And most importantly, investing in people, investing in economy, and investing for innovation. These are actually the union budget. These are actually the points on which union budget is focusing, so that we balance the national development priorities with fiscal imperatives. Government is using almost the entire borrowed resources for financing effective capital expenditure. So the borrowings are not going for revenue expenditure or committed expenditure or any of those kinds. It's going only for creating capital assets. So in effect, government intends to use about 99% of borrowed resources to finance effective capital expenditure in the upcoming 25-26 year. प्रश्नकाल के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को पहले उपलब्ध 12 भाषाओं के अलावा 6 और भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध कराने के बारे में जानकारी दी। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि संसद के अंदर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में साइमल्टेनियसली हम सदन में पहले से उपलब्ध करा रहे थे। अब हमने 6 भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल किया है। और इसी के साथ जो अतिरिक्त 16 भाषा हैं, 16 भाषाओं के अंदर भी जैसे जैसे मानव संसाधन मिल रहा है, हमारी कोशिश है कि हम साइमल्टेनियसली भाषाओं का रूपांतरण कर सकें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, दुनिया के अंदर भारतीय की संसद ही एक लोकतांत्रिक संस्था है जो इतनी भाषाओं के अंदर भाषांतरण कर रहा है, साइमल्टेनियस कर रहा है। जब मैंने विश्व स्तर पर ये चर्चा की कि हम भारत में 22 भाषाओं के अंदर इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, तो सर्वथा सभी मंचों ने इसकी प्रशंसा की। और हमारा प्रयास है कि जो 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है, आने वाले समय में जैसे जैसे मानव संसाधन मिलते जाएंगे, हमारी कोशिश है कि आपके इस टेबल पे लगे से आपकी 22 भाषाओं में आप भाषांतरण को सुन पाएंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मॉडल मत्स्य पालन ग्राम परियोजना से संबंधित एक प्रश्न का जवाब देते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि भारत अब मत्स्य पालन में दूसरे स्थान पर है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान मत्स्य पालन में 126% की वृद्धि हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, तब से मछली के उत्पादन देश में इतना बढ़ा
कि लगभग 126% की वृद्धि हुई है मछली के उत्पादन में। और आज हमारा देश विश्व में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर खड़ा है। महोदय, 2013-14 में 95.7 लाख टन मछली का उत्पादन इस देश में होता था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद शासन में आने के बाद बढ़कर 23-24 में 184.02 लाख टन मछली का उत्पादन हो। उसमें सही बात है, माननीय सदस्य ने जो कहा वो सही बात है कि इस पूरे मछली उत्पादन में जो इनलैंड फिशिंग है, जो अंतर्देशीय मछली उत्पादन है, उसका वृद्धि 126% है और 13-14 में मात्र 61.36 लाख टन था, जो अब 23-24 में बढ़कर 139.07 लाख टन हो गया है। तो ये वृद्धि जो है इनलैंड फिशिंग का शेयर बहुत बड़ा है मछली के उत्पादन में। अब जहां तक माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जो बैन पीरियड होता है 3 महीने लगभग मछली के उत्पादन के लिए बैन होता है और मछली उत्पादन नहीं हो पाता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है। उसमें जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की 1500 रुपए की हिस्सेदारी है, 3000 रुपए और 1500 रुपए लाभार्थी का योगदान होता है और टोटल 4500 रुपए को हम लोग 3 महीने में, जो 3 महीने प्रतिबंधित समय होता है, उस 3 महीने के अंदर 1500 रुपए प्रति माह के दर से हम लोग उनको जीवन भरण पोषण के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब कई बार लाभार्थी का भी शेयर नहीं मिलता है, कहीं राज्य सरकार का शेयर नहीं मिलता है, तो उसके कारण इसके साइकिल में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे कि वो परेशानी नहीं होगी। जैविक खाद और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर एक प्रश्न का उत्तर कृषि मंत्री की तरफ से पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी स्थितियों में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारत के किसानों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने फसल बीमा योजना को प्रारंभ किया और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस समय में मुझे कृषि मंत्रालय में काम करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब से लागू हुई है तब से देश के करोड़ों लोगों को यह विश्वास सजित हुआ है, अर्जित किया है उन्होंने, कि यदि राम रूठ जाए, राजस्थानी में एक कहावत है कि राम रूठ जाए लेकिन राज साथ में खड़ा है, भगवान भी नाराज हो जाए लेकिन सरकार साथ में खड़ी है, ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से किसान आज महसूस करते हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि a dip has been observed in the total number of the farmer who has opted for the insurance। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए और सदन के लिए संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पहले ये स्कीम कंपलसरी थी और हर ऐसा फार्मर जो लोनी फार्मर है उसके लिए आवश्यक था, ऑटोमेटिकली उसका इंश्योरेंस होता था। लेकिन देश भर में अनेक प्रदेशों से, इस सदन में भी अनेक बार इस प्रश्न को उठाया गया कि हमारा जबरदस्ती इंश्योरेंस किया जा रहा है, हमारी को आवश्यकता नहीं है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसे समाप्त किया गया। अब ऑप्ट आउट करने की सुविधा है कि अगर फार्मर चाहे तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है कि मैं इस बीमा को नहीं लेना चाहता, उसके कारण से निश्चित रूप से डिप हुआ है। और देश भर में लगभग लोनी फार्मर्स में 3 करोड़ 20 लाख फार्मर ऐसे थे जिन लोगों ने जो है फसल बीमा से अपने आप को बाहर रखा है। लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उसको लेकर के एक स्पेशल ड्राइव पिछले वर्ष में आयोजित किया गया जिसमें 1 करोड़ 30 लाख के लगभग फार्मर्स को नया उसके साथ में जोड़ा गया। निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगा यहां बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्यों से कि किसानों को अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए इस जो है बीमा योजना के साथ में जोड़ने के लिए सभी सम्मानित सदस्यों को अपने जो है कर्म क्षेत्र में उसके लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे गए, जिनमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय से जुड़े पत्र रखे गए। सदन में रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संचार मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय के पत्र रखे गए। साथ ही खान मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे गए। इसके बाद शून्यकाल में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले उठाए। बीजेपी सदस्य अनिल फिरोजिया ने शून्यकाल में ये मामला उठाया और रेलों में कुल्हड़ में चाय उपलब्ध कराने का सरकार से अनुरोध किया। परसोत्तम भाई रूपाला ने सूरत के हीरा कारोबार में लगे कारीगरों की स्थिति का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह ने पंजाब में नशे और हथियारों की तस्करी के साथ पुलिस चौकियों पर विदेशी हथगोलों से हमला का मामला उठाया। साथ ही एनईए की जांच कराने की मांग की गई। बुलेटिन में अब बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही संपन्न हुई। इसके अलावा विधायी कामकाज निपटाए गए। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ हुई। राज्यसभा सदस्य देवाशीष सामंतराय को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा सदस्य जीसी चंद्रशेखर और नितिन लक्ष्मण राव जाधव पाटिल को जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं दी गईं। 12 फरवरी को उनका जन्मदिन है। इसके बाद सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे गए, जिनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल थे। इसके साथ ही पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे गए। सदन में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 254वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के लिए सदस्य निर्वाचन का प्रस्ताव भी रखा गया। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और सरकार से इसके समाधान की मांग की। समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। मालदीव की संसद पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल भारत की यात्रा पर है। उन्होंने आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही देखी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की ओर से प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। On behalf of this august house, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Abdul Rahim Abdullah, Speaker of the People's Majlis of the Republic of Maldives, and honorable members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guests. We have strong bilateral relations with Maldives. The visit of Maldives parliamentary delegation will further strengthen our bilateral relations. The parliamentary delegation arrived in Delhi from Malé on Monday, the 10th February 2025. They are now seated in the special box.
They are scheduled to meet and call on various dignitaries in Delhi. Besides Delhi, they will also visit Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of the Parliament, the government, and the friendly people of the Republic of Maldives. इसके साथ ही राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद हैं। ये नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन में 5 करोड़ 30 लाख बहनों का भाई और बहनों का उनकी स्क्रीनिंग हुई है और 2 करोड़ डिटेक्ट हुए हैं जिनका कार्ड बना है। ये कैसे हुआ है? अगर यहाँ डॉक्टर नहीं गया, अगर यहाँ मेडिकल व्यक्ति नहीं गया, तो ये 2 करोड़ लोगों को कार्ड किसने बांटे, किसने तय किया कि सिकल सेल नहीं है? इसलिए ये भ्रम मैं बहन रंजीता जी के से नहीं, सारे हाउस को बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह की चर्चा, मैं हेल्थ मिनिस्टर 1998 से रहा हूँ, स्टेट में भी रहा हूँ, हमेशा चर्चा होती है कि इतने डॉक्टर्स ने, इतने मेडिकल फ्रेटर्निटी की दृष्टि से मैं एक बात बताना चाहता हूं सभापति जी कि हमारा सिस्टम बहुत रोबस्ट है। वो चाहे किसी भी प्रदेश में हो, कोई भी सरकार चला रहा हो, लेकिन सिस्टम इज वेरी रोबस्ट। और इसी कारण से आज देखिए हम पोलियो को किस तरीके से, अगर पोलियो का वायरस कोई हमको सीवेज में भी मिलता है तो हमारा रोबस्ट सिस्टम उसको तुरंत पकड़ लेता है और इस कारण से हम इसको कर रहे हैं। तो ये जरूर है, अब डॉक्टर्स की संख्या 8 है, इन पोस्टेड 4 होंगे, ये बात मैं मान सकता हूं। उसके लिए मेडिकल कॉलेजेस में 131% मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हुआ है, सीट्स में इंक्रीज हुआ है। 75,000 new medical doctors are going to come in next 5 years and 10,000 more doctors are to be added this year. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि सरकार ने बीमा धारकों की सुरक्षा के लिए नियम प्रावधान तय किए हैं जो एडा की निगरानी में लागू किए जाते हैं। सरकार बीमा धारकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वैसे नागरिक जिनको कभी बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, उनको बीमा सुरक्षा देने के लिए अगर देखें तो तमाम योजना हमारी सरकार चला रही है, चाहे वो पीएम जीवन ज्योति योजना हो, चाहे वो सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे अगर देखें तो 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर उनको देने का काम कर रही है। अभी हाल में ही सरकार ने फैसला किया कि 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर देखें तो जनधन खाता जो खुलता है उसमें जो रुपए कार्ड दिया जाता है उसमें भी 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा से कवर किया जाता है। इस तरह हमारी सरकार पहले से ही इन सभी वंचितों की चिंता कर रही है, जिसके विषय में पहले इसके बारे में किसी ने कोई सोचा नहीं था। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बाजार में बिक रही संविधान की प्रतियों से 22 इलस्ट्रेशन हटाए जाने का मुद्दा उठा। बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने संविधान की मूल प्रति में वर्णित 22 कृतियों के बगैर बाजार में बिक रही संविधान की प्रतियों पर रोक लगाने की मांग की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सरकार को निर्देश दिया कि संविधान की ऐसी प्रतियों की बिक्री या प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए जिनमें ये कृतियां नहीं हों। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अनावश्यक मुद्दा बनाने की कोशिश करार दिया। इसके बाद सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो भी पब्लिशर्स संविधान की प्रति पब्लिश कर रहे हैं वे इन कृतियों के साथ संविधान की मूल भावना के साथ पब्लिश करें। असंवैधानिक तरीके से हुए खिलवाड़ की ओर आपके माध्यम से इस पूरे सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं। आज देश का एक आम नागरिक, चाहे विधि शास्त्र का एक आम छात्र, अगर भारत के संविधान की पुस्तक बाजार में खरीदने जाता है तो उसे वह मूल प्रति प्रिंटेड रूप में नहीं प्राप्त होती है जिसके ऊपर 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान निर्माताओं ने दस्तखत किए थे। इस संविधान के कुछ प्रमुख हिस्सों को न जाने किन कारणों से असंवैधानिक तरीके से संविधान के हिस्से से निकाल दिया गया। हम सभी जानते हैं कि संविधान में अगर कोई संशोधन करना है
तो संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया है और उसके माध्यम से संविधान का एक भी कामा, पुल स्टॉप, कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द, कोई भी तुम हटाया जा सकता है, बिना उसके किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं और इस देश के नागरिक जानना चाहते हैं, क्या कारण थे कि 26 जनवरी 1949 को जो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, उनके महत्वपूर्ण हिस्सों को कुछ लोगों ने न जाने कब बिना किसी संसदीय स्वीकृति के उन्हें हटा दिया। माननीय सदस्यगण, भारत के संविधान जो हस्ताक्षरित है वही हमारा संविधान है और उस संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो इसका हिस्सा है। ये निर्विवाद है कि जो संविधान हस्ताक्षरित है और जो सदन में भी है उसमें संशोधन है, वही प्रचारित होना चाहिए, वही प्रसारित होना चाहिए। यदि अगर कोई भी प्रसारण इसके विभिन्न है, मतांतर है, तो वो किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं कहा जा सकता। माननीय सदस्य ने ये कहा है कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस प्रति पर संविधान के निर्माताओं ने दस्तखत किए हैं, उसका अभिन्न अंग है 22 कृतियां, जो भारत की सांस्कृतिक यात्रा के 5000 साल दर्शाती हैं। और आज के दिन कोई भी संविधान की पुस्तक लेता है, उसमें ये नहीं है और ये अनुचित है। मैं आग्रह करूंगा सदन के नेता से कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दस्तखत किए हैं उसमें उतना ही बदलाव हो सकता है जितना संसद स्वीकार करती है। उसके अलावा कोई भी बदलाव किसी भी व्यवस्था के तहत, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, संविधान में नहीं होना चाहिए। सदन ने जो कर दिया वो संविधान की का अंतिम परिभाषित प्रतिलिपि है। और माननीय सदस्य ने जो बात कही है, रोज देखने को मिलता है, छात्रों को पता नहीं, किसी पुस्तक में आपको वो 22 कृतियां नहीं दिखाई देती हैं। Any violation of this should be taken quite seriously by the government and severe action taken. और अभी जो संविधान पब्लिश हो रहा है, जो भी पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे होंगे, उसमें ये कृतियां नहीं है। और आपने बहुत सही डायरेक्शन दिया। जो राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपने सही डायरेक्शन दिया। सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं के साथ वह पब्लिशर्स पब्लिश करें और वही कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मार्केट में उपलब्ध हो। एक बात। दूसरी बात, दुख के साथ कहना पड़ता है कि विषय कुछ और था और हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने राजनीति को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक पॉइंट को, राजनीतिक इशू, पॉलिटिकल इशू को उठा करके इन्होंने उसका एडवांटेज लेने का प्रयास किया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। Dr. Radha Mohan Das Agarwal has rightly pointed out that the act of omission or commission, either on our iPads or in any book, without carrying the miniatures 22 of that constitution of which architect is Dr. B.R. Ambedkar and signed by our founding fathers. And the only variation, I reiterate, please note my words, the only change that can take place in the Indian Constitution can emanate only from the Indian Parliament. And any change
emanating from the Indian Parliament, duly signed by the Honorable President under Article 111, must invariably find mention in the Indian Constitution, irrespective of any intervention from judiciary or otherwise. And therefore, it is not optional for the government or anyone else to adhere to it. This is the only way, and everyone in the country is required to have Indian Constitution, which is duly sanctified. Dr. Derek O'Brien has a point. Before him, is not there. We must regret it. We must make amends, and amends be made as quick as possible by everyone concerned, including the government. If there is any publication from your side, strict steps should be taken, and I'm sure in the shortest possible time, the government will make it convenient that people come to know only and only the authentic version of the Indian Constitution as it holds the field today. राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन केंद्रीय बजट 2025-26 पर सामान्य चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने हिस्सा लेते हुए अपने सुझाव और विचार सदन में रखे। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। वहीं विपक्ष ने मनरेगा समेत दूसरी योजनाओं के लिए उचित आवंटन नहीं करने का आरोप लगाया। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट को नाकाफी बताया। इस बजट में 0.4% से फिस्कल डिफिसिट कम किया है। इस बजट का अगर हम ध्येय देखें तो ध्येय में भारत को एक स्वस्थ, सशक्त, सुरक्षित और स्वावलंबी नया भारत बनाना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का थीम है, प्रधानमंत्री जी का ध्येय। अगर ये स्वस्थ, सशक्त, सुरक्षित, स्वावलंबी नया भारत बनाना है तो जैसा इस बजट में बताया गया है, हमें गरीबी शून्य तक लाना पड़ेगा, 100% गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को प्रदान करना पड़ेगा, हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देना पड़ेगा, 100% स्किल लेबर्स विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, 70% महिला आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल करना पड़ेगा, भारतीय किसानों की आय बढ़कर दुनिया के फूड बास्केट में उभर आना पड़ेगा, उसी तरह कॉमन मैन को टैक्स को रिलीफ देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग को प्राधान्य देना पड़ेगा और इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। ये सभी 10 चीजों इस बजट में माननीय अर्थ मंत्री जी ने समावेश किया है। आज जिस तरह से पावर प्लांट्स, जिस पुरानी टेक्नोलॉजीज वो थी, आज एक नए युग में हम जा रहे हैं। पूरा विश्व देखिए, आज सोलर एनर्जी है, कितनी बड़ी मात्रा में हमारे देश में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को हम हार्नेस कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की कितनी बड़ी डेवलपमेंट हमारे देश में हो रही है। आज इथेनॉल हमारे पेट्रोल में, और आज 20-20% तक हम लोगों को मिक्सिंग का अब मौका मिला है। और इथेनॉल केवल एक आप फ्यूल के हिसाब से ही मत छोड़िए, आज फार्मर्स को, किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल के वजह से वहां पर उनको एक प्रोडक्टिव फार्मिंग का मौका मिला है। मैं अपने क्षेत्र में मैं देखता हूं ना कि एक जमाने में इथेनॉल के लिए खाली हम शुगर केन की बात करते थे, उसका में से कन्वर्ट करो जूस से। आज मक्के से इथेनॉल बनता है, राइस से इथेनॉल बनता है, ब्रोकन राइस जो हमारा अदरवाइज वेस्ट होता था उससे आज प्रोडक्टिवली हम इथेनॉल बना रहे हैं। उसका फायदा किसको मिल रहा है? इस देश के किसानों को मिल रहा है। उनको ज्यादा उनकी उपज का दाम मिल रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका असर हो रहा है, पॉजिटिव असर हो रहा है। तो ये सब बातों को कहीं ना कहीं हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भारत बदल रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए को टैक्स हटाकर 1 लाख करोड़ को इंजेक्ट किया है हमने इकोनॉमी के अंदर। पर अब बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है। भाई जो कुछ करिए, जो इनके कहने पर
इनके कहने पे नहीं कि उनको कभी था नहीं, बुराई के तरह जो कहते थे, जब वो हो जाता है, उम्मीद से ज्यादा हो जाता है, तो एक कुछ ना कुछ इनको नुक्स निकालना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग 2009 से 2014 तक 1.5 लाख करोड़ हुआ था और आज 2019 से लेकर 26 तक 55 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे होगा। फिगर्स आपको साफ तौर से बताएंगे। अभी हेल्थ की बात हो रही थी, तमाम योजनाएं इस सरकार ने लागू की हैं पिछले 10 सालों में, जिससे तमाम लोगों के पैसे बच रहे हैं और सरकार के पैसे बच रहे हैं। उसमें मैं PLI स्कीम के माध्यम से और MSME को जो प्रमोट किया है, पहले हम इंपोर्ट करते थे मोबाइल 2013-14 में 49,000 करोड़ रुपए, अब हम 2024 में 15 बिलियन जो डॉलर है इसके स्मार्टफोन हमने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किया है। पहले 2 कंपनियां होती थी मोबाइल की, अब हमारे यहाँ 300 से अधिक कंपनियां हैं। और मध्यम वर्ग के लिए तो आज तो पूरे देश भर में मध्यम वर्ग, अनेकों मध्यम वर्ग जो है वह प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, क्योंकि मध्यम वर्ग को जिस प्रकार से लाभ देने का काम किया है वह अद्भुत है। किसी भी विषय पर सदन में सिर्फ भाषण देने के लिए आने वाले और बोलकर चले जाने वाले सदस्यों का मुद्दा राज्यसभा में उठा। बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने इस मुद्दे को उठाया। सभापति ने इस मुद्दे पर जल्द रूलिंग देने का भरोसा दिलाया। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय घनश्याम तिवारी जी ने, जिनको संसदीय व्यवस्था की लंबी जानकारी और अनुभव है, एक प्रश्न उठाया है कि क्या सदस्य अपना भाषण देकर उसको तुरंत बाहर जाना चाहिए, और इसका दूसरा रूप है क्या पूरे सत्र के दौरान सदन में अपने भाषण देने के लिए ही आना है। ये दूसरा है। इसका एक तीसरा पहलू और है कि संसदीय प्रणाली में, जिसकी व्याख्या बेस पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में की गई है, कोलन 70 में की गई है और अनेक बार सदन के पीठासीन अधिकारियों द्वारा भी की गई है, ये अति आवश्यक है कि मर्यादित आचरण का आधार दूसरे की बात सुनना और अपने विचार व्यक्त करना। प्रजातांत्रिक व्यवस्था तभी आगे बढ़ सकती है जब अभिव्यक्ति का अधिकार हो, वो अधिकार कुंठित नहीं हो, और जो अधिकार अभिव्यक्ति का इस सदन के सदस्यों को प्राप्त है, जिसके बारे में बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा अधिकार प्राप्त करने के बाद अनंतवाद न होना, दूसरे की बात न सुनना, अपनी बात को कहकर निकल जाना, ये मुद्दा आपने उठाया है और आपने उपयोग किया है कि अपना अभिभाषण दिया एंड यू शो बैक टू एवरीवन एल्स। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर इस सत्र के दौरान मेरा निर्णय आपको मिलेगा। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।